Hello, everyone. Welcome, everyone, to this show. And thank you for taking out time to be present in this show. Now, have you ever loved something a little too much? Something that is good, like a healthy routine, healthy food, cleanliness, good behavior. Too much that it became an addiction. And you didn't even know. What is addiction? So addiction is such some chronic condition that involves compulsive seeking behavior where we perform any activity. That addiction impacts our health, relationships, and overall quality of life. But are there any positive habits that are compulsive and are controlling you? So let's look into our lives and see, are there habits? Are we being controlled by some good habits that have become addictive? And maybe it is impacting your health, relationships, and quality of life. We have the honor of having Acharya Kaushal Kumar ji on our talk show today. Acharya ji is an esteemed scholar and he holds a PhD in yogic sciences. With his deep understanding of ancient Indian philosophies, particularly in Samkhya and Bhagavad Gita, he will enlighten us on the key factors that can cause positive habits to become addictions. Welcome, sir, to the show. Pranam. And thank you for taking our request and being here on the show. So, sir, there is this behavior seen in people when they get so obsessed with their positive habits and they say, this is good, it is to be practiced, that it starts impacting their relationships, even health. So, sir, please enlighten us that what are those ways or fundamental qualities that actually influence human behavior, and then we can talk more on addictions. Over to you, sir. नमस्ते। ये डिस्कशन जो है इसमें मैं तो चूंकि योग का स्टूडेंट हूं तो मैं योग के पर्सपेक्टिव से ही आपको बताऊंगा। बाकी तो मेरे ख्याल से आप लोग कोच हैं तो ढेर सारी चीजें आप लोग खुद ही जानते हैं। व्हाट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ योगा in dealing with this positive habits or addictions, everything. So when we are going to discuss about yoga, first we have to understand mind. What is mind? How it is formed? In fact, हम लोग जो कहते हैं mind और addiction both are synonyms. Mind, habit and addictions, both, everything, these words are synonyms. We can say mind as a user. So whatever we say in yogic terms. So first we will understand what is the mind. बाकी चीजें हम अपने आप ही समझ लेंगे। Our personality completely depends on our mind. And mind is a prejudice. जो हमारे पूर्वाग्रह होते हैं उन्हीं को हम मन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा हिंदी में मुझे ज्यादा अच्छा आता है तो इसलिए मैं ज्यादा हिंदी बोलूंगा, फिर अंग्रेजी भी बोल दूंगा बीच बीच में। माइंड बनता कैसे है? तो चूंकि माइंड मास्टरी है, हमारा जो सीकर पूरा माइंड मास्टरी का ही काम करता है, तो बेसिकली और सीकर जो बनाया गया है वह काम ही जो है माइंड मास्टरी का ही के लिए ही था, और पूरा उसमें माइंड मास्टरी का ही काम ही है। तो इसलिए हमें माइंड को समझना जरूरी है, और मेरे ख्याल से आप लोग समझते होंगे, लेकिन फिर भी यौगिक टर्म में इसको समझ लीजिए। अंकुर जी तो बहुत अच्छी तरह समझा देते हैं,
मैं यौगिक टर्म में ही समझा पाता हूँ। माइंड हमें मतलब कि जो हम बनाते तो है ही हैं, माइंड इज आवर ओन क्रिएशन, दिस इज द ओनली थिंग इन दिस वर्ल्ड विच वी क्रिएट फुल्ली, विच वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग। एनी अदर थिंग वी कैन नॉट क्रिएट anything in this universe except our mind. We think that we create many things, but this is all illusion. This is the only mind which we create fully. और माइंड हमें पूर्व जन्म से मिलता है, दिस इज एज ए सीड। ये सीड है जिसको आप सटल बॉडी कहते हैं, विच यू से सटल बॉडी वी गेट फ्रॉम आवर पास्ट लाइफ, एंड इट इज transmigrating with your soul till you did not get enlightened. तो थोड़ा सा प्रोसेस समझने की, इसके समझने, इसके बनने का तरीका क्या है कि हमारे यहाँ नॉलेज के दो साधन हैं। देयर आर टू मीन्स टू गेट नॉलेज। वन इज आउटर नॉलेज, वी गेट फ्रॉम आवर फाइव these knowledge senses like eyes, ears, nose, tongue and skin. From eye we see, from ear we listen. So you know the objects of these five senses. But what is happening inside, you cannot get it from these five senses. So there is conscience inside, जिसे हम अंतःकरण कहते हैं। और दिस conscience has four parts: मन, बुद्धि, चित्त एंड अहंकार। So मन is thinking mind, चित्त is analyzing mind, अहंकार is ego mind, and बुद्धि is decision taking mind. तो आउटर सेंस जो है वह हमारे इनर सेंस को फीड करता है। आउटर सेंस में जैसे हमने कोई चीज देखी, तो देखने में इफ वी सी समथिंग, वी हैव थ्री रिएक्शंस। वन रिएक्शन इज whether what we see, whether it is good, the second is bad, and the third is neutral. Not only seeing, any perception, whatever you get from your senses, you have only three reactions. यद्यपि वो पहले से ही वायरिंग होता है दिमाग। जैसे बच्चा है, एक माँ के दो बच्चे हैं मान लो, एक बच्चे को आम पसंद है, एक बच्चे को अमरूद पसंद है। क्यों? जबकि माँ एक ही है, बीज एक ही है। मैंने वो बीज का जो धरती है, जो खेत है, वह एक ही है, लेकिन एक को आम पसंद है, एक को अमरूद पसंद है, बचपन से ही। क्यों? बिकॉज वी गेट इट फ्रॉम आवर पास्ट लाइफ। तो अच्छा और खराब जब लगता है कोई चीज, तो देन इट क्रिएट्स मेमोरी इन योर माइंड। अगर अच्छा खराब नहीं लगेगा, न्यूट्रल लगेगा, तो उसका कोई सॉलिड मेमोरी नहीं बनेगा। अच्छा और खराब का ही मेमोरी बनता है। एंड आई यूज टू गिव दिस एग्जांपल ऑल द टाइम। आप एयरपोर्ट जाते होंगे, एयरपोर्ट गए होंगे, और एयरपोर्ट पे देखिए तो हजारों लोग रहते हैं, लेकिन वे हजारों लोग अगर आपको फिर दोबारा कभी मिलें तो आप उनके फेस को नहीं पहचान पाओगे। लेकिन कोई फेस ऐसा लगता है कि जो बड़ा अच्छा लग जाता है, बड़ा खराब लग जाता है, उसको आप पहचान जाते हो, क्योंकि वो अच्छा और खराब का यहाँ पर स्कैनिंग हो जाता है, हमारे चित्त पर उसकी फीड हो जाती है। और जब अच्छा और खराब का जब मेमोरी बनता है, तो देन इस मेमोरी से, अगर मेमोरी ना बने तो काम खत्म हो जाएगा। आम आपने खाया, आम भी खत्म हुआ और आप सेटिस्फाई भी हो गए, बस बात खत्म। लेकिन मेमोरी फॉर्म होता है, मेमोरी इज फॉर्म। उस मेमोरी से फिर हम दोबारा भी आम खाने का मन करते हैं बस।
माने मेमोरी से डिजायर पैदा होती है। तो फर्स्ट गुड और बैड, दिस इज अटैचमेंट एंड एवर्जन, एंड देन मेमोरी, एंड देन डिजायर। अब डिजायर क्या करता है कि देन यू वांट इट टू गेट अगेन। तो उस अगेन में करने के लिए फिर आप क्या करते हैं? फर्स्ट यू थिंक, थिंक को हम कर्म करते हैं, और जब आप कोई एक्शन लेते हैं तो उसको हम क्रिया करते हैं। तो फर्स्ट यू थिंक दैट अगेन वी हैव टू गेट दिस मैंगो, एंड देन यू डू क्रिया, you go to the market and purchase the mango and then come back to your home and you eat it। तो ये सब क्रिया है। तो कर्म और क्रिया हुआ। पहले वह यहां था, सटल फॉर्म में था, फिर अब वह एक्शन फॉर्म में आया। पहले नॉलेज सेंसेस से हुआ, अब फिर एक्शन सेंसेस काम करना शुरू की, हमने उसको खा लिया। जब आप उसको खाए तो उस मेमोरी से जो एक अ, अ, जो जो उस मेमोरी का लेयर पड़ा था, खाने के बाद उस मेमोरी, एक बार आपने उसको खाया था, उसका मेमोरी बना था, फिर आप दोबारा खाए तो एक लेयर और चढ़ गया उस पर मेमोरी का। फिर आप फिर से खाएंगे। अब ये तो है नहीं कि बस 2 ही दिन खा के बंद कर देंगे, बिकॉज यू लाइक इट और डिसलाइक इट। डिसलाइक करते हैं किसी चीज को तो उसको देख करके आप डर जाएंगे, फिर आप सपना देखने लगेंगे कि कह रहे ऐसा फेस, राक्षसी फेस देख लिया था, फिर आप सपना देखेंगे, सपने में भी डरेंगे, वहां पर भी मेमोरी फॉर्म हो रही है। फिर आप चाहेंगे कि वो चीज हम फिर कभी ना देखें। सब मेमोरी फॉर्म हो रही है, लेयर पर लेयर चढ़ता जा रहा है। अगेन यू ईट, अगेन यू ईट। जब बहुत लेयर मेमोरी की चढ़ जाती हैं तो देन इट बिकम्स वासना, इंप्रेशन। उसको हम इंप्रेशन करते हैं, एंड दैट इंप्रेशन, वो सब हमारे चित्त पर इट गेट्स फेड इन आवर चित्त। एंड व्हेन दिस वासना ईयर टू ईयर इट हैपेंस, देन इट बिकम्स संस्कार। तो वासना इज इंप्रेशन and sanskar is more deeper, that is called आप यू कह सकते हैं कि डीप इंप्रेशंस। एंड दोज दीज डीप इंप्रेशंस दे मतलब कंट्रोल योर ऑल द हैबिट्स, व्हाट एवर यू डू वो ही कंट्रोल करते हैं आप। आपको गुस्सा जो आती है, व्हाट एवर यू फील गुस्सा, यू फील एंगर, यू फील लस्ट, यू फील फियर, ये सब उसी की वायरिंग से ही जो है वो निकलता है। जो आपने उसमें फीड कर रखा है वासना संस्कार का, वो बीज है। जिस जिस पेड़ का बीज होगा वही पेड़ तो जन्म लेगा ना। अगर आप आम को लगाएंगे, आम का पेड़, आम का बीज जमीन पर डालेंगे तो उसमें आम ही तो फलेगा ना, आम ही का पेड़ तो निकलेगा ना, उसमें अमरूद तो नहीं फल सकता है। तो वट एवर यू फीड इट हियर, वो सब कुछ मिल करके it becomes deep impression and it directs all your habits and it directs you। So we are just the मतलब not a independent human being, we are not an independent human being, we are just the आप यूं कह सकते हैं कि slave of our this mind, this prejudice, this illusion। तो इसी को हम एडिक्शन कह लो या हैबिट कह लो। अब कोई चीज ऐसी होती है इस संसार में कि जो हमें ठीक हमारे लिए होती है। हमारे यहाँ योग सूत्र में कहा गया है कि वृत्तयः पंचतयः क्लिष्ट अक्लिष्टा। देर आर 5 टाइप्स ऑफ वृत्तिज, 5 टाइप्स ऑफ आवर चित्ता माइंड, 5 टाइप्स ऑफ वृत्तिज इन आवर चित्ता, एंड देर आर 2 टाइप्स, क्लिष्ट एंड अक्लिष्ट। वन इज गुड फॉर यू and one is bad for you, which leads towards enlightenment, that is good for you, and which leads towards your you from outside from you, that is अक्लिष्ट वृत्ति। ठीक है, तो
ये दो चीजें महत्वपूर्ण हैं कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट। और ये पूरा हमारा माइंड, पूरा सब कुछ जो वायरिंग हुआ है, ये सब कुछ हमारा संस्कार है और हमारे द्वारा फीड है। इस संसार में कोई ऐसी टेक्निक नहीं है कि जिससे आप उसको निकाल करके दूसरा बन जाओ। मैं एक कौशल हूं, तो आप मुझे इस तरह से देख रहे हैं, कोई ऐसी दवा नहीं मिलेगी कि ये कौशल को बदल करके दूसरा कर। बट देर इज ए योग which which can change you completely. By the practice of yoga and meditation, you can change it completely. क्यों, कैसे? अगर आप बुद्ध फिलॉसफी पढ़े होंगे तो बुद्ध ने एक प्रतीत समुत्पाद दिया है, थ्योरी ऑफ कॉजेलिटी, एंड विच हैज कम फ्रॉम द सांख्य फिलॉसफी, सत्कार्यवाद, कॉजेलिटी थ्योरी। सांख्य दर्शन इज द ओरिजिनेटर ऑफ दिस कॉजेलिटी थ्योरी, कि हर चीज का कारण होता है। एवरीथिंग हैज इट्स ओन कॉज। नथिंग, इस संसार में कुछ ऐसा नहीं है अकारण नहीं पैदा हो जाता है, ऐसे नहीं पैदा हो जाता। हर चीज का एक कारण है। वो कारण हम समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम। अब वो कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं कि द रूट कॉज ऑफ आवर दिस माइंड क्रिएशन इज इग्नोरेंस, एंड व्हेन यू हैव इग्नोरेंस, तो आपको संस्कार बनेंगे ही बनेंगे, डीप इंप्रेशन बनेंगे ही बनेंगे। अगर आपको इग्नोरेंस नहीं है तो डीप इंप्रेशन कभी नहीं बन सकता है। दैट मीन्स यू आर नॉट द स्लेव ऑफ योर हैबिट्स और ऑफ योर एडिक्शन इफ यू हैव नो इग्नोरेंस। बट इफ यू हैव इग्नोरेंस, देन ये बनने ही बनने हैं। नो वन कैन स्टॉप इट, दिस प्रोसेस। और जब संस्कार बन गया तो फिर देन यू आर बाउंड टू टेक बर्थ। बर्थ एंड बर्थ मीन्स यू आर इन द बर्थ एंड डेथ साइकिल। ठीक है, तो वो ये वो भी बताते हैं और हमारा योग भी यही बताता है, सेम चीज। और सारे सारे ऑल द फिलोसफीज टेल्स लाइक दिस, कि इग्नोरेंस इज द रूट कॉज। अब आप इसमें इग्नोरेंस को कैसे देखेंगे कि जो हम कोई की चीज खाते हैं, अच्छा खराब लगता है। अब इसमें इग्नोरेंस इस तरह से है, अगर आप, इफ यू थिंक जस्ट डीपली, कि आम, एक आम है, तो उस आम के मान लो यहाँ पर 5 लोग हैं, तो हमने 5 टुकड़े कर दिए इन 5 पीसेस, और हम सबको एक एक टुकड़ा दे दिए, जस्ट टू टेक इट्स टेस्ट एंड टेल मी व्हाट इज द टेस्ट ऑफ इट। एवरीवन विल गिव इट्स डिफरेंट टेस्ट। आम इज द सेम, मैंगो इज द सेम, बट कोई कहेगा अच्छा है, कोई कहेगा कि चीनी की तरह है, कोई कहेगा कि मिठाई की तरह है, कोई कहेगा कि रसगुल्ले की तरह है, कोई कहेगा कि इस तरह है, कोई कहेगा उस तरह है। एवरी वन हैज अ डिफरेंट टेस्ट। एवरी वन विल टेल इट डिफरेंट। आम है, मीठा सबको लगेगा। अगर हमारे जीभ में कहीं कोई रोग नहीं है, पेट में, तो मीठा सबको लगेगा, अगर मीठा आम है। लेकिन उस मीठे का एक्सप्लेनेशन सब लोग अलग अलग करें। आम एक ही है, जीभ भी सबकी एक ही तरह की है, लेकिन क्यों हम अलग अलग हमारा होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, दिस इज बिकॉज ऑफ एवरी वन हैज ए डिफरेंट माइंड। अब फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेता हूं, एंड वी गिव दिस एग्जाम्पल ऑल द टाइम, तो आप बोर मत होइएगा। जैसे आपने देखा होगा कि बुद्ध जब सिद्धार्थ थे तो ही वॉज अ प्रिंस, हिज फादर वॉज ए किंग, यद्यपि जमींदार थे। He decided to leave the throne, not to take the throne, and to become a monk. And he became a monk. He left all these things, wife, wife, सुंदर बच्चा, माता पिता, और पूरा पैलेस, पूरा राज्य छोड़ करके चले गए। उन्हीं के कंटेम्परेरी मगध में एक राजा बिंबिसार हुआ करते थे। एक ने थ्रोन को छोड़ दिया। बिंबिसार हुआ करते थे, तो बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु था,
अजात शत्रु को, बिंबिसार अजात शत्रु को बहुत प्यार करते थे, उससे ज्यादा और किसी को प्यार नहीं करते थे। लेकिन अजात शत्रु वो बिंबिसार बहुत ज्यादा दिन तक जीवित रहे। तो अजात शत्रु ने सोचा कि हमको तो लगता है कि ये जितने दिन तक जीवित रहेंगे उतने दिन में मैं ही मर जाऊंगा, तो मैं कब राजा बनूंगा, उसके पहले ही हो सकता है मैं ही मर जाऊं, तो मैं कब राजा बनूंगा। तो उसने अपने बाप का कत्ल कर दिया, मार दिया। फॉर द थ्रोन ही किल्ड हिज फादर एंड द सेम अदर पर्सन ही लेफ्ट द थ्रोन। तो थ्रोन इज गुड और बैड, और योर थिंकिंग इज गुड और बैड? Our thinking makes it good and bad. Our wiring of the mind makes it good or bad. Things are not good or bad. तो इग्नोरेंस ही तो हुआ ना। तो थिंग्स एज इट इज नॉट गुड और बैड, एंड थिंग्स आर मेड फॉर योर यूज। बट व्हेन यू डू दिस टाइप ऑफ प्रिजुडिस, दिस इज गुड और बैड, और जब वह प्रिजुडिस इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हम किसी को मार सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, दूसरों को भी नुकसान कर सकते हैं, अपने को नुकसान कर सकते हैं, तो वह एडिक्शन होती है। और जब वह कामचलाऊ होती है कि ठीक है हमारे जीवन एज इट इज चल रहा है, तो उसे हम हैबिट कहते हैं, या कुछ बेटरमेंट की ओर चल रहा है तो उसे हम हैबिट कह देते हैं। यही दोनों में मूल अंतर है। तो अगर इग्नोरेंस ना हो, चीजें जैसी हैं वैसी ही दिखाई पड़े, मैंने इफ यू हैव दिस knowledge, eye of the knowledge, when you can see the things very transparent, then कोई एडिक्शन नहीं होगा, कोई हैबिट नहीं। बट अगर आपने वायरिंग कर लिया तो एडिक्शन और हैबिट होगा। योगा says that you have to be free from all these things. You have to free not only from addictions, you have to free from habits also. वो कहते हैं there are three types of gunas in yoga. One guna is tamogun, the other is rajogun, and the next is sato. हमारे यहाँ ये कहा गया है कि जैसे उन्होंने कहा ना कि योगस चित्त वृत्ति निरोध है, when you stop all the fluctuations of mind, that is a state of yoga. Then he says कि how the vrittis are formed, how can you be free from the vrittis? So then he says, first you have to be free from tamogun vritti. If your tamogun vritti is dominant, then you have to be free from it, and then you have to advance to the rajogun vritti. If you have a tamogun dominant vritti, like if you are very lazy, you don't want to do anything, very lazy, you just want to sleep and sleep and sleep, and only inertia, then if I say that you have to be free from these things, so he cannot be free. तो उसको आप थोड़ा सा लालच दे दो। उसको लालच क्या दो कि अगर तुम थोड़ा दौड़ना शुरू कर दो, और इस दौड़ में तुम जो है 100 मीटर की दौड़ है, 200 मीटर की दौड़ है, और इसमें अगर तुम फर्स्ट आ गए तो तुमको ये प्राइज मिलेगा, रिवार्ड सिस्टम दे दो। ब्रेन में एक रिवार्ड सिस्टम होता है ना जो डोपामिन फॉर्म करता है, तो वह दौड़ना शुरू कर देगा। आपने उसका रजोगुण जागृत कर दिया, उसको उसको रजोगुण में ला दिया, वो दौड़ना शुरू कर देगा, और वह टॉप भी आ सकता है, वह उस प्राइज को जीत भी सकता है। लेकिन यह भी जो है संस्कार बनाता है। तमोगुण तो बना ही रहा है, रजोगुण भी बनाता है। रजोगुण में वो जीतने का, वो कंपटीशन का वृत्ति होती है, और कंपटीशन की वृत्ति भी बहुत भयानक वृत्ति होती है। यह भी एक बहुत बड़ा एडिक्शन होता है। तो यहीं पर नहीं रुकना है, वो कहता है कि नहीं आप सात्विक में आओ, इसको भी चेंज करो थोड़ी देर, कुछ अपने लिए ही, क्योंकि रजोगुण वाला हमेशा अपने के लिए देखता है कि मुझे ये जीतना है, आई
have to win this, I have to do this, my palace should be this, my palace should be like this, my car should be like this, my wife should be like this, my husband should be like this, my children should be like this. These persons only thinks for only themselves. So then we say now you have to form the vrittis of सात्विकता. तो सात्विकता में हम कहेंगे कि भाई अब तुम ये ठीक है, तुम ये कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट 1 घंटे तुम थोड़ा दूसरों के लिए भी काम करना शुरू कर दो, कहीं बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो, बागवानी शुरू कर दो, कुछ 1 घंटे सेल्फलेस काम भी शुरू कर दो. तो धीरे धीरे फिर उसमें सात्विकता आने लगती है. हम हैबिट इसमें भी फॉर्म करवा रहे हैं. एक गंदी हैबिट से उसको अच्छी हैबिट में ला रहे हैं. उसमें तमोगुण में रहता तो वो जो है बीमार होता और हमेशा इनसिक्योरिटी में रहता, हमेशा भय रहती है. तमोगुण वाले हमेशा भय में रहते हैं, इनसिक्योरिटी में रहते हैं. और रजोगुण वाले हमेशा दुख में रहते हैं. उनको हमेशा पड़ोसी से अच्छा ही होना चाहिए या किसी से अच्छा ही होना चाहिए, इस वृत्ति में रहते हैं, तो वो हमेशा दुख में रहते हैं. अब उसका क्या सोल्यूशन हम करते हैं कि भाई अब इस भी आदत को हटा करके, एडिक्शन को हटा करके, अब ऐसे लोग क्या करते हैं कि जब रजोगुण बहुत हावी होता है, और स्वाभाविक सी बात है कि आवर ऑल डिजायर्स कैन नेवर बी फुलफिल्ड, नो वंस डिजायर कुड बी फुलफिल्ड एट, इवन इफ यू गेट द होल world's dominance, then also you will not get satisfied. You want to get the dominance of the Mars, moons, and all other. You want to go there also. So होता नहीं है, तो उसमें हम फिर क्या करते हैं? Then what we do? उसमें करते हैं कि कोई डिजायर पूरी हुई तो थोड़ा ग्रीड आ जाएगा कि अब उस तरह से आप, मैंने जैसे क्या होता है कि आदमी कहता है कि 5 करोड़ हो जाए तो हम खुश रहेंगे. 5 करोड़ होने के बाद तो कहते नहीं नहीं अब तो और होना चाहिए, 10 करोड़ होता है तो योर डिजायर इंक्रीजेस, तो उसमें आपको ग्रीड आ जाएगा. अब ग्रीड आएगा तो क्या होगा? ग्रीड आएगा तो फिर जो है आप, सारी डिजायर पूरी नहीं होती है तो ग्रीड ग्रीड करते रहोगे, तो उस पर फिर आपको सारी डिजायर पूरी नहीं होगी, तो फिर आप क्या करोगे? फिर इस एडिक्शन से बचने के लिए आप शराब में आ जाओगे, सिगरेट पे आ जाओगे, ये सब चीजें लेने लगोगे. ऑल द रजोगुणीज, मोस्ट ऑफ द रजोगुणीज डू दीज थिंग्स. शराब, सिगरेट, अय्यासी, ये सब उसके साइड इफेक्ट्स हैं, ये सब आने लगेंगे. तो देन एक एडिक्शन से दूसरे एडिक्शन पे आने, तो ये उसके साइड इफेक्ट्स है. माने इस तरह से जो है हमारे ये बनती है, जो संस्कार बनते हैं, एडिक्शन फॉर्म होते हैं, और फिर वो हमारे ब्रेन को ही कंट्रोल करने लगते हैं. जब एकदम आपका ब्रेन ही पूरा सरेंडर करके उन्हीं के कंट्रोल में आ जाता है तो हम उसको एडिक्शन कह देते हैं. और जब तक वह कंट्रोल में नहीं रहता है, थोड़ा बहुत हमारे कंट्रोल में रहता है, तब तक हैबिट भी रहता है. बट हैबिट इज आल्सो, इवन द हैबिट ऑफ गुड हैबिट इज आल्सो बैड. अब जैसे मैं बताता हूँ सतोगुण में, फिर हम उनको सतोगुण में लाते हैं कि भाई ठीक है, कुछ देर के लिए आप सेल्फलेस काम करना शुरू करो. मान लो अब वो सेल्फलेस काम ही करना शुरू कर दिए, तब क्या होगा? सेल्फलेस काम करने शुरू करने पर भी सतोगुण का भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, उसमें ईगो बहुत आ जाती, जबरदस्त ईगो आ जाती. और फिर वह ईगो जो है वह रजोगुण और तमोगुण से ज्यादा खतरनाक हो जाती है. जैसे अगर आप एरोप्लेन से आपका क्रैश करे किसी का, तब तो बचने की संभावना ही नहीं है. साइकिल से गिर गए, मोटरसाइकिल से गिर गए तो बचने की बहुत संभावना है. साइकिल से गिर गए तो थोड़ा खरोच आएगा, मोटरसाइकिल से भी गिर गए तो हो सकता है हाथ पैर टूट जाए. लेकिन अगर प्लेन से गिरे तो बचने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती, बहुत कम पॉसिबिलिटी रहती. वैसे ही सतोगुण वाला जो है आदमी अगर गिर गया तो फिर तो वो बेड़ा गर्क कर देता है. तो इसीलिए हमारे यहाँ अब जैसे अर्जुन थे, युधिष्ठिर थे, भीष्म पितामह थे, ये सब सतोगुण के मारे हुए लोग थे. भीष्म पितामह ने ले लिया वो भीष्म पितामह ने ले लिया प्रतिज्ञा, तो बस उसी प्रतिज्ञा के लिए सब कुछ लूट गया, लेकिन उस प्रतिज्ञा के ही पूरा करने में लगे. भीम ने ले ली प्रतिज्ञा की उनकी जंघा तोड़ना है, तो फिर चाहे उल्टा सीधा सब कुछ करना पड़े, फिर वो तोड़ने तोड़.
ठीक है, अर्जुन ने ले लिया कि जो है हाँ ठीक है, अगर कोई हमको सामने से जो है ललकारता है तो मैं चाहे हमारा बेटा मन्नू ही मर जाए लेकिन उसकी ललकार को सुनूंगा, उधर उसको मारने के लिए जरूर दौड़ूंगा। जबकि कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं नहीं, पीछे चलो, आप पीछे चलो, उस पर मत ध्यान दो। लेकिन नहीं, उनकी भी बात, गुरु की भी बात टाल रहे। ये सब सतोगुण के जो है दुष्परिणाम है। तो सतोगुण में और ज्यादा खतरा हो जाता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ कहें कि योगस चित्त वृत्ति निरोधा, सतोगुण इज आल्सो अ वृत्ति। तो यू हैव टू गो इवन बियॉन्ड दिस। इसीलिए कहते हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, with the practice of detachment you can be free from all these vrittis. So you have to go even beyond this sattvic vritti. All the fluctuations of mind should stop, all the vrittis should stop. बट इसका ये मतलब मत समझिएगा कि फिर वृत्ति स्टॉप हो गई तो हम जीवन कैसे जिएंगे, हमारा लाइफ ही नहीं चलेगा। ढेर सारे लोग विचारों में इतना जो है अटैच्ड हो जाते हैं कि जब उनसे कहो योग का परिभाषा बताओ कि वृत्ति को स्टॉप कर देना जो है वह योग है, तो फिर योग में आते ही नहीं है, क्योंकि वो विचारों में इतने अटैच्ड होते हैं कि बिना विचार के वो रह नहीं सकते। वो कहते हैं बिना विचार के जिएंगे कैसे। जैसे अभी मैं कहीं हमारा प्रोग्राम था तो उसमें जो है ब्रह्मचर्य पर बात चल रही थी, सेलिबेसी पे। ब्रह्मचर्य बेसिकली सेलिबेसी नहीं है, वो ब्रह्मचर्य दूसरी चीज है। तो ब्रह्मचर्य पर बात चल रही थी, तो किसी ने कहा कि अगर सारे ब्रह्मचारी हो जाएंगे, सारे योगा करने लगेंगे, सारे ब्रह्मचारी हो जाएंगे तो पूरे संसार कैसे चलेगा। तो अब उस स्थिति में हम पूरा संसार का ठेका लिए रहते हैं कि जैसे संसार हम ही चला रहे हैं, अगर हम ब्रह्मचारी हो गए तो संसार नहीं चलेगा। अरे 10,000 साल से वेद लिखे गए हैं, ब्रह्मचर्य को लिखा गया है, कितने लोग ब्रह्मचारी हुए अभी तक। इतना सरल काम है ब्रह्मचारी हो जाना, तो वीरों का काम। हमारे यहाँ ये कहा गया है कि वीर लोग ही आत्मलाभ कर सकते हैं, कायर कपूत लोग आत्मलाभ नहीं कर सकते। और वह कभी सेंचुरीज में 10, 20, 25 लोग होते हैं। तो इसलिए ये कहना कि हम ही संसार को चला रहे हैं, हम अगर जो है ब्रह्मचारी हो जाएंगे तो संसार चलना बंद हो जाएगा, तो दिस इज जस्ट एक्सक्यूज। दिस इज बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट। इतना डीप अटैचमेंट है हमको बच्चा पैदा करने में कि जो है इसलिए हम वो चीज, ये एक्सक्यूज करके उधर से छूटना चाहते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि हमारा जो योग है वो कहता है कि इससे फ्री हो जाओ। तो द रूट कॉज ऑफ एवरी हैबिट एंड एवरी एडिक्शन इज आवर माइंड। इग्नोरेंस हो गया और माइंड हो गया, तो यही रूट कॉज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल नो दैट वी हैव टू डाई, वन डे वी हैव टू डाई, एंड दैट डे इज नॉट वेरी सर्टेन, एंड दैट डे इज नॉट लिंक्ड विथ एनी एज। किसी भी समय हो सकता है। जब आप माँ के गर्भ में आते हैं तभी से मृत्यु की तलवार पीछे ऐसे लग जाती है, और वह किसी भी समय काट सकती है। कोई निश्चित आपको नहीं पता होगा कि किस समय आप कट जाओगे। ये नहीं होता है कि 50 साल के बाद ही कटोगे, 80 साल के बाद ही कटोगे, किसी भी समय कट सकते हो। बट द होल लाइफ वी ट्राई टू अवॉइड दिस। द होल लाइफ वी fight, we struggle to avoid the death, in spite of knowing, that we have to be old, but the whole life we try to not to be old, to be ever young. So this is all illusion and it creates mind. And when your thinking is completely objective, then mind is not formed. That is called knowledge. And when it is subjective, it is called mind. So subjective mind is itself an addiction and habit. पतंजलि कहते हैं कि when you want to come out of it, this is a mental process. You have to practice detachment. Detachment means you have to practice objectivity.
Detachment does not mean to leave everything. Detachment means you have to practice the objectivity. So this is all. How to get free of it, what is the cause of this addiction. I think मेरे मेरे कहने का मतलब हम समझ गए होंगे, और उसको कैसे फ्री करें हम उससे, ये भी मैंने समझाने का प्रयास किया कि आप डिटैचमेंट से, ऑब्जेक्टिव थिंकिंग से उससे फ्री हो सकते हैं। बट द पर्सन जो बहुत एडिक्टेड हुआ है, तो उसको आप ये बताने लगो कि नहीं ये सब खराब है, ये सब संसार जो है वो है टेम्परेरी है और ये नॉन इटर्नल है, ये सब समझाने लगो तो उसको समझ भी नहीं आएगा। तो उसको दूसरा प्रोसेस है समझाने का, उसको दूसरा तरीका है, तो वो हम तरीका अपना सकते हैं। तो ये मेरे उस प्रश्न का उत्तर था। मेरे ख्याल से इसमें मैं सब कुछ देने का प्रयास किया हूँ, बट इफ यू हैव एनी वन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, राइट? Yes, thank you, sir. It was so much in-depth knowledge. Or we understood, you spoke about mind, spoke about the three gunas, the tam, raj, sat. हम इतनी बार उसके बारे में पढ़ते हैं. Sir, is it possible to identify for people, generally if people are, especially अगर हम इन तीनों की बात करें, because that's what we also mentioned, that we will talk about these tamogun, rajogun, satogun a lot. So is it possible for people to understand and identify from their characteristics that are they falling into tamogun या rajogun या अरे ये satogun practice है? So, and what can they, how can they change? Like you said, from tamogun we will ask them to come to rajogun, and from rajogun to satogun, and even we have to go beyond satogun by practicing detachment. But how do we start? How can I identify that, oh, I have tamogun and I have to shift from this characteristic to other characteristics? तो हमारे यहाँ योगी मीटर में इसी का तो टेस्ट होता है, उस टेस्ट में हम यही तो नापते हैं। वी मेजर So ओनली basically, दिस, this is एंड for the knowledge of everyone. अकॉर्डिंग टू दैट मेजरमेंट वी गिव द एएमएस टू द स्टूडेंट। अब उसका Right. उसका आपको डिटेल में चाहिए तो वो इतने एक घंटे 2 घंटे में नहीं होगा। इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम। Yes, right, sir. Great. Thank you, sir, so much. And there is a question in the chat box that how to practice detachment. मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इस पर उस क्वेश्चन को बताइए, तो फिर आपको डिटैचमेंट समझ में आ जाए। जैसे एक नदी है, वो नदी बहुत तेज बहती है, बहुत तेज उसकी धारा है। अब उस नदी की धारा को इतनी तेज है कि अगल बगल के गांव जो है वो डूब जाते हैं, खेत डूब जाते हैं, बरसात में खेत डूब जाते हैं, गांव डूब जाते हैं, ढेर सारे लोग मर जाते हैं, ढेर सारे एनिमल्स मर जाते हैं। अब गवर्नमेंट अगर सोचती है कि इस पर इसको कैसे रोका जाए, तो या लोग सोचते हैं कि इसको कैसे रोका जाए कि इतने लोग ना मरे, तो क्या करते हैं आप? उस पर बांध बनाया जाता है। यही तो किया जाता है ना, बांध बनाया जाता है, डैम बनाया जाता है। लेकिन डैम से ही काम नहीं होता है। अगर आप केवल डैम बनाएंगे तो वह तोड़ देगा, इतनी तेज धारा होती है कि वो तोड़ देगा। तो उससे हम नहर भी बनाते हैं कि लोगों की सिंचाई भी हो जाए। पहले नहर निकालते हैं। नदी तो अपने आप जो है वह ग्रेविटी के आधार पर, पानी जिधर जाता है, पानी का फ्लो होता है ऊपर नीचे, उधर से वो चला जाता है। लेकिन नहर ग्रेविटी से नहीं होता है, इसको हम फॉर्म करते हैं। तो पानी, जैसे आपका मकान जो है 3rd फ्लोर पर है, तो आप पानी उस पर कैसे चढ़ाते हैं? क्योंकि 3rd फ्लोर पर नीचे से पानी तो ऊपर चढ़ेगा नहीं अपने आप। तो आप एक मशीन लगाते हो, टुल्लू लगाते हो, थोड़ा फोर्स लगाते हो उसको। तो डिटैचमेंट इज फोर्स टू मेक अ न्यू कैनाल, कि आप एक नया कैनाल बना दें। तो वो पानी जो है उधर डाइवर्जन भी हो जाएगा, क्योंकि
मन को पूरी तरह से उस तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है। आदतों को, गंदी आदतों को बदल करके नई आदतें डालनी पड़ी। तो आप ये कहो कि जो है आप पूरी तरह से मन को खत्म कर देंगे, तो इट इज नॉट पॉसिबल। इवन व्हेन यू आर एनलाइटेंड यू हैव माइंड, लॉर्ड बुद्धा हैज माइंड, बट इट वाज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू नॉलेज, ऑब्जेक्टिविटी। क्योंकि जब मरने लगे, जब शरीर छोड़ने लगे, तो एक दो दिन पहले बीमार थे, तो नदी के किनारे पे लेटे और कहे जाओ आनंद पानी लाओ, और वो पानी लाए, पानी पिया उन्होंने, ठीक हुए। फिर दूसरे तीसरे दिन फिर कहे अब तो मैं थक गया हूँ, अब मुझे जाना है, अब मुझे मेरे जाने का समय आ गया है, मैं जा रहा हूँ। आनंद रोने लगे, तो उन्होंने कहा क्यों रो रहे हो? तो कहे अब आप जा रहे हैं, आपको तो और दिन रहना चाहिए। तो कहे पूरे जीवन भर तो मैंने एक ही चीज बताई कि डोंट गेट अटैच्ड विथ एनीथिंग एंड डोंट गेट अवर्जन विथ एनीथिंग, एंड यू आर स्टिल डूइंग दिस थिंग्स। तो कहने का मतलब है कि डिटैचमेंट हम उसको कहते हैं कि जो चीज अपनी नहीं है उसको अपना बनाने का प्रयास मत करो। जो चीज आपकी है उसी को अपना कहो, जो चीज आपकी नहीं है उसको अपना मत करो। यानी जो चीज आपसे छूट जाने वाली चीजें हैं उसको अपना मत कहो, वो केवल टेम्परेरी आई है आपके पास, तो उसको अपना मत कहो, अपना मत समझ करके उससे अटैच मत। जैसे कोई भी चीज आप देख लीजिए, ये बॉडी आपका परमानेंट तो नहीं है ना, लेकिन अभी इसको कोई गाली दे दे तो देखो आप कितना बिखर जाते हो, कितना बिफर जाते हो, कितना परेशान हो जाते हो, कितना दुखी हो जाते हो, कितना क्रोधित हो जाते हो, तो उसको मारने पर तैयार हो जाते हो। तो लेकिन मेरा ये मतलब नहीं है कि जब तक है तब तक तो ये मेरा है ही है, लेकिन ये परमानेंट मेरा नहीं है। जैसे आप किसी का घर जो है जाके कब्जा कर लो, आपको अच्छा लगे घर तो आप कब्जा कर लो और कहो कि ये मेरा है, तो कितना पुलिस का होगा, कोर्ट में जाएगा केस, आप भी जेल जाओगे, 50 चीजें कितनी होती हैं, तो वो दुख ही तो है ना। तो जो चीज आपकी नहीं है उसको अपना कहना जो है वह अटैचमेंट है या एवर्जन है, और जो चीज आपकी है, सॉरी, जो आपकी नहीं है आपकी, उसको आप छोड़ दो, माने उसको अपना, उससे अटैचमेंट मत करो, जस्ट यूज इट। जब तक है उसका अच्छी तरह से उपयोग करो, लेकिन उससे किसी तरह से अटैचमेंट और एवर्जन न करो। बस यही डिटैचमेंट, यानी ट्रू को फॉलो करना, ट्रू की प्रैक्टिस करना, ट्रुथ की प्रैक्टिस करना, यही जो है डिटैचमेंट है। हम लोग डिटैचमेंट को सोचते हैं कि अरे घर छूट जाएगा, पत्नी छूट जाएगी, पति छूट जाएगा, बच्चा छूट जाएगा, गाड़ी छूट जाएगी, ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा। तो क्या वो छूट नहीं जाएंगे क्या? एक दिन तो सब छूटना ही है ना। और वो छूटने का दिन भी निश्चित नहीं है, पता नहीं वो छोड़ दे आप छोड़ दें। छूटना तो निश्चित है, तो आपका कहाँ हुआ वो? तो क्यों ये डर रहे हो कि वो छूट जाएगा? जब तक है उसका उपयोग करिए जीवन में। तो ऑब्जेक्टिविटी को रखना ही जो है वह डिटैचमेंट है, सब्जेक्टिविटी को रखना अटैचमेंट और एवर्जन। और ये हमें रोज अपने जीवन में प्रैक्टिस करना पड़ता है। व्हाई आवर माइंड इज नॉट फोकस्ड? व्हेन वी डू मेडिटेशन माइंड डिड नॉट गेट फोकस्ड, व्हाई? Most of us we meditate, but we say that oh, mind didn't get focused. Why? Because केवल बैठ जाने से ये चीजें थोड़ी हो जाएगी। गधे के ऊपर किताब रख दो तो गधा ज्ञानी थोड़ी हो जाएगा। उसको प्रैक्टिस भी तो करना होगा ना। आप जीवन में तो आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो कि ये मेरा है, वो मेरा है, वो बैंक में इतना जमा कर लूं, यहाँ पर इतना कर लूं, ये सब कर लूं, और सुबह मेडिटेशन करने बैठे हो। तो बोथ आर, यू आर डूइंग कंट्राडिक्टरी थिंग्स। तो कंट्राडिक्टरी थिंग में कैसे जो है आपको जो है वो होगा? कभी नहीं होगा। यू कैन नेवर गेट सक्सेस इन मेडिटेशन। बोथ थिंग्स जस्ट डू टुगेदर। एक दूसरे को एक दूसरा चलाता है। अगर आप दिन में इसका प्रैक्टिस करेंगे कि चीजों को, जो चीज जैसी है उसको वैसा देखना शुरू कर दीजिए। अब सांप है तो सांप को हम रस्सी समझ लेते हैं और पकड़ लेते हैं, रस्सी को सांप समझ लेते हैं। तो ये, इसको हम इल्यूजन कहते हैं। लेकिन रस्सी को रस्सी ही समझे, सांप को सांप ही समझते हैं, तो दिस इज ट्रूथ। तो सही समझ
विकसित करना, डेवलप करना, दिस इज डिटैचमेंट। ओनली विथ डिटैचमेंट इट कैन। डिटैचमेंट का ये बिल्कुल अर्थ मत समझिए कि आप जो है कपड़ा बदल लिए, गेरुआ कपड़ा पहन लिए और ये लगा लिए और खूब वो कर लिए, माला माला पहन लिए तो आप यू नाउ यू आर सन्यासी एंड डिटैच्ड पर्सन। नो, नथिंग। ये गीता से डिटैचमेंट मीन्स जो है सत्य का अभ्यास कर। एंड इट कैन बी डन in home also, and it cannot be done even when you go to the mountain also. You leave everything and you go to the mountain, वासना जो है वह आपको हमेशा परेशान करती रहेगी। लेकिन अगर आप समझदार हैं और चीजों को अच्छी तरह से समझते हैं तो आप घर में भी ये कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल तो होता ही है घर में भी करना, लेकिन फिर भी किया जा सकता है, लोगों ने किया है। ठीक है, Thank मेरे you, ख्याल sir. मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, या और थोड़ा सा एलाबोरेट कर दो? So, Isko sir, can you explain it from the aspect also of the habit and detachment? And how can we practice it, experience it at home? जैसे आपने कहा घर पे it is difficult. So how do we practice detachment? For example, with kids, like if you have a small kid and you are the parent and you are responsible for rising or for the growth of the child, and there is a positive, like, a mother, for example, or a father would think, no, this is a good habit. These must be inculcated in kids. अब वहां पे हमें डिटैचमेंट भी प्रैक्टिस करना है, हैबिट फॉर्मेशन भी प्रैक्टिस करना है. इट्स लाइक maybe it's illusion again there, but I think for practical day to day life example, people will get to know and get to understand this better. देखो, एक तो ये बात है कि जो है कैसे हम माने अटैचमेंट भी रहता है और फिर डिटैचमेंट भी, कैसे ये चीजें करते रहे हम। तो ये तो क्या है कि आप ये सोचते हैं कि बच्चे की आदतें मैं जो है अच्छी आदतें करवा दूंगा। ऑल द पेरेंट्स थिंक, लेकिन क्या सभी बच्चों की अच्छी आदतें होती हैं? क्यों नहीं होती हैं? एक तो उसका वायरिंग पहले जन्म कर लेके आया है। एक ही बच्चे का, एक ही माता पिता के 5 बच्चे होते हैं, पांचों अलग अलग होते हैं। एक सेंट बन जाता है, एक रॉबर बन जाता है, एक डकैत बन जाता है, एक मर्डरर बन जाता है। बीज तो एक ही है। अगर आप दशहरी का पेड़ बोएंगे तो उसमें दशहरी आम निकलता है, लेकिन एक ही माता पिता से 5 बच्चे हैं तो 5 अलग अलग क्यों हो? एक में चौसा हो गया, एक में दशहरी हो गया, एक में कुछ हो गया, एक में कुछ होगा, क्यों है? क्योंकि एक तो वायरिंग वो पहले से लेके आता है। ठीक है। दूसरा, जब आप ये कहते हो कि मैं ये चाहता हूं कि जो है वो हमारा बच्चा अच्छा बने, तो अच्छा बनने के लिए फर्स्ट यू हैव टू प्रैक्टिस दोज हैबिट्स। इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग दोज हैबिट्स and you want to inculcate good habits in your children, then this is highly impossible. ये फिर contradictory हो रहा है। तो your child learns from you also। वो तो लेके आ ही रहा है, आया ही है, लेकिन आपसे भी, बाहर से भी कुछ भी लेता है, कुछ चीजें लेता है। तो बाहर से लेने के लिए आप उसको उस तरह से वो करिए, आप खुद उस तरह का बनिए, तो देन यू कैन थिंक। अब केवल ये सोचने मात्र से कि हमारा बच्चा अच्छा बने, तो लोग सोच तो रहे हैं कहाँ किसके बच्चे अच्छे बन रहे हैं। Very well said, sir. Yes, is so true. And there's a question, sir. और What is the दूसरा ये प्रैक्टिस करना कि जो है ये कहना कि उसमें हम डिटैचमेंट की भी प्रैक्टिस करें। कैसे करें? तो बच्चे को जब पालने लगे, तो जैसे दाई होती है ना, दाई कुछ बहुत रिच पर्सन लोग हर बच्चे के लिए दाई रख देते हैं, और वो दाई जो है 2-4 साल तक देखती है, और फिर उसके बाद जो है, या मैंने तो देखा है कि 10-15 साल तक दाई ही देखती रहती है। लेकिन जब दाई जाने लगती है बच्चों को छोड़ के, तो बहुत दुखी नहीं होती, क्योंकि वो पहले से ही जानती रहती है कि जो है हम तो इसको पाल रहे हैं। क्यों? उस तरह दाई की तरह पालिए तो आपको भी दुख नहीं। और दिस इज ट्रू, हम सब यहाँ टेम्परेरी है, सब किराए पर आए हुए हैं, लेकिन रहते रहते अटैचमेंट इतना कर लेते हैं कि वो अपना लगने लगता है कि ये सब अपना है, लेकिन पूरा पूरा सब कुछ किराए पर। एवरीथिंग इज रेंटेड। so there is a question. There are few questions.
Will detachment lead to memory loss, eventually erasing all your past karma? Detachment does not mean memory loss. Detachment means you have a more greater memory, right memory. Right memory is very necessary for samadhi, for enlightenment. लेकिन आप देखिए कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है मेमोरी हम कम होती जाती है। क्यों कम होती जाती है? क्योंकि हम बड़ा उल्टा सीधा इसमें भरते जाते हैं ना। जैसे Hmm. इसको गार्बेज बना देते हैं ना, तो गार्बेज में बनाओगे तो फिर बदबू आएगा ही आएगा। तो हमारा राइट मेमोरी कहाँ होता है? सब रॉन्ग मेमोरी भरा रहता है कि उसने हमको 15 साल पहले ये कह दिया, फिर मैं मुझे ये कहना चाहिए था, और फिर झगड़ा झंझट हमेशा अपने मन में ही तो लड़ते थे। वी आर वे फाइट इन आवर माइंड। सो इससे मेमोरी तो लॉस होगा। मेमोरी लॉस डिटैचमेंट में कैसे होगा? तो आपकी मेमोरी इतनी शार्प होती है। हम जैसे साधकों का जो अभी इनलाइटनमेंट से बहुत दूर है, मैं तो बताता हूँ कि मुझे 1 साल के जब मैं था तब की बात तो मुझे याद है, और आप कब क्या बात करते हो सब मुझे याद होती है। ऐसा नहीं है कि याद नहीं होती है। हमारी मेमोरी बहुत शार्प है, और जो इनलाइटेंड हो जाते हैं तो उनकी तो और शार्प होती है और प्रैक्टिकल होते हैं। बट दे आर नॉट अटैच, देयर इज नो अटैचमेंट एंड एवर्जन विद द मेमोरी। तो वो मेमोरी जो है वह न्यूट्रल वाली मेमोरी होती है। जब आप उसमें अपना और पराया देखने लगते हो, सुख और दुख वाला देखने लगते हो, तो दिस मेमोरी जो है ये आपको सारा गुड़ को गोबर कर देती, सारा काम गड़बड़ कर देती। Sir, another question is, what is the difference between samskar and karma? संस्कार और कर्म, कर्मा बेसिकली व्हाट यू डू, कर्म और क्रिया व्हाट एवर यू डू, एंड संस्कार जो है वह बीज है। तो संस्कार जो है आपको कोई कर्म करने के लिए जो है फोर्स करते हैं। तो संस्कार को कह सकते हो कि वह सॉफ्टवेयर है और कर्म हार्डवेयर है। बोथ आर वेरी मच लिंक्ड। लेकिन जब आप निष्काम कर्म कर लेते हो तब संस्कार आपको नहीं काम, संस्कार जो है जो पुराने संस्कार हैं वो रोस्ट हो जाते हैं। वो संस्कार जाते नहीं है। हमें संस्कारों को आप ये कहो कि मेमोरी को आप हटा सकते हो तो हटा नहीं सकते हो, बट यू कैन रोस्ट देम। जैसे चने का बीज है, चने के बीज को अगर आप जमीन पे लगाओ और थोड़ा पानी दे दो, थोड़ा सा सनरेज दे दो, तो वो जर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको बॉयल कर दिया है या रोस्ट कर दिया है तो दैट ग्राम सीड कैन नेवर बी रोस्टेड, कैन नेवर बी जर्मिनेटेड। बस ये है कि हमारा रोस्ट हो जाता है इसमें। ये यही बेसिक डिफरेंस है। Thank you, sir. There is one more question. What getting addicted to habits like yoga, meditation, etc., which when not done, creates issue in our body and mind? कैन नॉट क्रिएट, सॉरी अगेन दिस, अगेन क्वेश्चन। What if our addicted, like, habits like yoga, meditation, pranayam. So if we don't do that, if we don't practice regularly, then they start creating issues in body and mind. So what about that addiction? देखिए, योगा और मेडिटेशन को हम लोग तो एक एडिक्शन के रूप में बनाना चाहते हैं कि आपकी एक हैबिट हो। हैबिट, क्योंकि बुरी आदतों को छोड़ने के लिए मैंने बताया कि अच्छी आदतें आपको बनानी पड़ेंगी। बाद में जी. लास्ट में अच्छी आदतें भी छोड़ देनी पड़ेंगी, क्योंकि आदतें इटसेल्फ जो है वह खराब होती है अल्टीमेटली। लेकिन प्रोसेस यही है कि बुरी को छोड़ने के लिए आपको अच्छी पहले बनानी पड़ेगी, देन आप अच्छी छोड़ पाओगे। आप सीधे बुरी को छोड़ दो कि बुरी आदतें छूट जाए, तो कभी नहीं छूट सकती है। आप छोड़ने के लिए वही नहीं, ट्राई ही नहीं करोगे। तो ये उसका प्रोसेस है। तो हम इसी प्रोसेस से जब गुजरते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर हम बीच में छोड़ देते हैं तो तब अब जैसे अब आपका घर है, आप अपने घर से 20 किलोमीटर कहीं आगे चले और वहां आपने चलना बंद कर दिया, तो क्या होगा? आप 20 किलोमीटर दूर पे रहेंगे, थकेंगे भी और कहीं पहुंचेंगे भी नहीं। जहां Hmm. आपको पहुंचना था वहां पहुंचेंगे भी नहीं, और थक भी गए एक्स्ट्रा, अलग से थके भी। तो
ये इसीलिए मैं कहता हूं कि केवल कायर और कपूत लोग होते हैं कि जो मार्ग को बीच में छोड़ देते हैं, या तो अच्छा गुरु उनको नहीं मिलता, या तो अच्छे संस्कार नहीं होते। अब यह है कि सबके अच्छे संस्कार नहीं हो सकते, लेकिन अगर गुरु ठीक मिल गया तो डेफिनेटली वह रास्ता दिखा करके उसको ले जाता है। लेकिन सब लोग सरेंडर गुरु को कर भी नहीं पाते हम्म। कि जैसा गुरु कहे, क्योंकि गुरु डेफिनेटली अगर अच्छा गुरु है तो वो आपको अच्छी जगह पे पहुंचाई दे। और अगर अच्छा गुरु नहीं है तो फिर इसीलिए कबीर कहते हैं कि जाका गुरु है आंधरा, चेला का कराए, अंधे अंधा पेलिया दोनों कूप पर आए। यानी जिसका गुरु ही अंधा है तो उसका चेला तो अंधा होगा ही होगा, और दोनों क्या करेंगे कि दोनों जाके कुएं में गिरेंगे। तो संस्कार के साथ साथ इस पर भी ज्यादा मतलब कि टीचर अगर अच्छा मिलता है तो डेफिनेटली वो आपको चेंज कर सकता है। लेकिन अगर आप चेंज करने के लिए तैयार हैं तब, अगर तैयार नहीं है तो कभी नहीं चेंज। Thank you so much, sir. And that very clearly reflects that, हम अपने बीन पर काम करें rather than कर्म पे काम करें, बिल्कुल, हम एक्शन पे काम एएमएस करें। हमने एएमएस इसी तरह बनाया है कि आपको अगर तमोगुणी है तो आपको रजोगुणी लाएं, और रजोगुणी पे ही छोड़ने का नहीं बनाया है। रजोगुणी से आपको सतोगुणी और सतोगुणी के ऊपर भी ले जाने का, माने वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से करेंगे तो आप निश्चित रूप से ऊपर बढ़ते जाएंगे। उसी तरह से डिजाइन ही बहुत साइंटिफिकली डिजाइन करने का प्रयास किया है अपनी समझ से। यद्यपि उसमें मैं बहुत अच्छा बोल तो नहीं पाता हूँ, क्योंकि वैसे ऐसे डिस्कशन में मैं बोल लेता हूँ, लेकिन कैमरे के सामने फिर उतना बढ़िया नहीं बोल पाता हूँ। लेकिन ऐसे डिस्कशन में मेरे ख्याल से मैं उससे कंपैरेटिवली बेटर बोल। और ऐसे ही डिस्कशंस में हम आपको बुलाते रहेंगे सर, एंड आप प्लीज आते रहिए और हमें ऐसे बहुत सारे और विषयों के बारे में बात करते रहेंगे। आज के विषय में भी मुझे लगता है हम एक इलेबोरेट करके सिर्फ तम रज और सत के ऊपर हम दोबारा से बात कर सकते हैं, जिनके ऊपर हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें ज्यादा कर सकते हैं, जिससे कि जो सीकर के भी बाहर के लोग हैं उन तक भी ये नॉलेज पहुंचे। सो बिल्कुल, मैं मुझसे तो जो कुछ ले सकते हैं मैं तो हमेशा तैयार हूँ। अब जितना है उतना तो दे ही सकता हूँ, जो जो नहीं है वो तो कोई बात ही नहीं। लेकिन प्रयास यही है कि जो प्रैक्टिस करता हूँ वही बोलता हूँ। thank you so much, sir. Thank you for this wonderful session. It was very नमस्ते। enlightening, and I hope everybody got some benefit out of this. And the key is to keep practicing, and that's what sir always keeps saying. And I still remember, sir, जब आपने last session में बोला था चलते फिरते meditation भी कर सकते हैं. That is बिल्कुल maybe that is going beyond सतोगुण ऑल्सो कि आप उसमें भी मत फिक्स हो जाइए कि आप बैठ के ही मेडिटेशन कर रहे हैं. दैट इज ऑल्सो एन एडिक्शन, बट मे बी यू कम टू दैट स्टेट ऑफ बीइंग वेयर इन यू कैन प्रैक्टिस मेडिटेशन एनी टाइम. क्या है कि चलते फिरते मेरे मेडिटेशन का ये मतलब है कि जैसे आप टॉयलेट में जाते हैं तो टॉयलेट के विषय में थोड़ी सोचते हैं, आप तो किचन के विषय में भी सोच सकते हैं, है ना। अपने ऑफिस के विषय में भी सोचते हैं, और लोग सोचते ही हैं, कहाँ टॉयलेट के विषय में सोचते हैं। उसी तरह से आप चलते फिरते तो अपने माइंड को जो है दूसरी जगह लगा सकते हैं ना। जो आप कर रहे हैं वही वहीं थोड़ी लगाइए, दूसरी जगह लगाइए, अच्छी जगह पे कहीं लगा दीजिए उसको। और वो प्रैक्टिस का काम, रोज रोज प्रैक्टिस करते रहिए, रोज रोज प्रैक्टिस करते रहिए, तो इसमें अटैचमेंट ले आइए अपने। इसीलिए गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ योगी मीटर में जो बताया गया है ना, गोल सेटिंग, विदाउट गोल यू कैन नेवर रीच टू द हायर लेवल। चाहे वो छोटा ही गोल हो, फिर भी आप एक लेवल पर तो पहुंचे ना। तो इसलिए गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं निकलता हूँ, मेरी एक और क्लास। नमस्ते। थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. Thank you everyone for participating. Bye bye. You can please leave the comments maybe later in the group and what more sessions you would like to have with Sir, or otherwise also in these Monday Mastery circles, and what would you like to hear more. So if there's anything that you want us to bring forward, please put it in the group, or you can personally message me or let any of the founders know. Thank you.